Okay, so this principal component analysis is an unsupervised technique, and the objective of PCA is of data reduction. And what do I mean by that? So you're given this data, which is this X written here in the form of a matrix. The rows of this matrix are individual data points. So you have M training examples or M training data points, and the columns they indicate the number of columns indicates the features that you have in your training examples. So this X is a matrix of size M by N. M is the number of training examples, N is the number of features. So the objective of data reduction is this. Okay, you want to obtain a matrix which has size M by K. So M again is the number of examples and K is the reduced set of features. And K is less than N. So you want to reduce the number of features that you have. And why do we do that? उसका क्या advantage, क्या फ़ायदा है? The advantage or the requirement is okay, sometimes you want clarity of representation. What do I mean by that? For example, अगर आपको मैं ये एक मैट्रिक्स एक शो करूँ, जहाँ तो चलें ये एक बॉक्स बना है, लेकिन let's say some real matrix with real values. If I show you that, yeah, in the table form, if I show you some data, you will not be able to make any decision, या you will not be able to see any pattern, और आपको वो data will not be helpful क्योंकि those will be just numbers written in the table form, and it will not help you in any way to make any judgment or any decision on that data. But if I show you the same data in the form of a, let's say, in the form of a 2D plot, कि जिसमें ठीक है data points are these dots, तो मे बी यू कैन इजीली सी अच्छा जी ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, या इस डाटा सेट की शेप जो है इस तरह की है, पैराबोलिक है, एंड सम थिंग्स लाइक दैट. यू मे बी एबल टू मेक बेटर डिसीजन, मे बी एबल टू जस्ट बाय लुकिंग एट द डाटा यू मे बी एबल टू टेल कि अच्छा ये डाटा सेट जो है वो उसमें का पैटर्न किस तरह का है. तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर n डायमेंशनल डाटा पॉइंट है उसको हम 2 डायमेंशनल इसका प्लॉट कर सकें, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. बट what if we still want to do that? Okay, we want to reduce it to maybe k is equal to 2. I'm just giving you the example of reducing it to 2 dimension. Even reducing 1 dimension may help you in we will see later some examples कि उनकी वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है. तो so so what PCA does data reduction. Data reduction का फायदा क्या है कि we want clarity of representation. Second advantage is maybe we want to compress the data. अगर आपने ट्रांसमिट करना है इस डेटा को, तो इस पूरी मैट्रिक्स X के बजाय अगर आप रिड्यूस मैट्रिक्स X ये Z अगर आप ट्रांसमिट करें तो इट मे बी बेनिफिशियल. तो so that is why we sometimes do compression. So we want to do compression, that is why we want to do data reduction, and PCA, principal component analysis, is one of the techniques to do that. However, we also do not want to do oversimplification because that may result in loss of important or relevant information, right? क्योंकि the simplest approach अगर आपको मैं कहता हूँ कि सिर्फ आपने इसको रिड्यूस करना है और सिर्फ 2 कॉलम्स 2 फीचर्स रिटेन रखने हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप पहले 2 कॉलम पिक कर लें और बाकी सारे डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें. बट दैट मे रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस. मे बी जो पहले 2 कॉलम हैं दे वर नॉट इंपॉर्टेंट और थर्ड कॉलम इंपॉर्टेंट था, वो आपने डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको रखा ही, रिटेन ही नहीं किया, ट्रांसमिट नहीं किया. तो इवेंचुअली व्हाट यू हैव डन इज कि यू हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन. So what we do not also want that. We want to intelligently do this reduction. Okay, we have minimal loss, right? So PCA is one such algorithm which will allow us to do that. Okay, it will allow us to reduce the dimension. At the same time, it will try to keep we will try to make sure that we reduce the dimension, but in such a way that the loss of information है that is minimum, right? Okay, let's look at a simple example of a
2D data points. इस केस में the matrix X जो आपको given है, its shape is, for example अगर इन्हीं data set को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, you have 9 points, each point has 2 values corresponding to X and Y coordinates, so your input data vector is of size n by 2. And for example, the objective is to convert that into n 9 by 1. कि आप सिर्फ एक इसको reduce करना चाहते हैं from 2D to 1D. So what are the options do we have here? The obvious option is कि let's try to ignore the first or the second. ये पहला आपके पास कॉलम है, सेकंड कॉलम है. Let's try just remove or ignore the second column and you will be left with only 1D case, which what it means is that if you ignore the second this axis, so all these points they will fall on the first axis, so you will be left with this. Or in another case, if you keep the first one or you keep the second one and ignore the first one, then what will happen is that all those points will fall here, something like that. Okay, so which of these two options do you think is a better option? Which of these two is a better option? सर दोनों एक जैसे नहीं है. ठीक है, तो आपने कहा दोनों एक जैसी हैं, तो ठीक है, you're right. In this example it seems कि आप कोई भी एक चूज कर लें, it will not make any difference. तकरीबन एक जैसा ही लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन लग रहा है. ओके, so let me give you another example. एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसमें आपके पास ये है डेटा सेट. ओके, तो इसमें अगर आपने, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि ईदर वी कीप एक्सेस 1 और वी कीप एक्सेस 2, तो विच वुड बी ए बेटर ऑप्शन? एक्सेस 1 रख ले. सर 1 बेटर. कौन सी? 1 सर बेहतर है. हाँ जी, ठीक है, यू आर राइट, 1. एंड द रीजन इज, व्हाट इज द रीजन? सर उसकी वैल्यूज में वेरिएशन ज्यादा है. What make you say that? What helped you in making this decision कि Axis 1 is better? सर इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही हैं. Say it again. सर वेरिएशन ज़्यादा है इसमें. क्या ज़्यादा है? वेरिएशन ज़्यादा है सर. हाँ, X2 में ठीक है, एक ही लाइन ठीक में है, है. तो वेरिएशन ज़्यादा है. X1 में वेरिएशन, या इन अदर वर्ड वेरिएंस, जैसे हमने GMM में भी पढ़ा था, वेरिएंस टेल्स यू कि कितना स्प्रेड है अराउंड द मीन लोकेशन. ठीक है, वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड अराउंड द मीन लोकेशन. तो इसमें मीन आपका ये है, एंड देन दिस इज कि कितना आप उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है डाटा में. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. इन द अदर एक्सेस ये आपका मीन है एंड द वेरिएशन इज वेरी लिटिल. ठीक है, बहुत ही, अब उसी के अराउंड, मीन के अराउंड ही सारे डाटा पॉइंट्स हैं. तो दिस वेरिएंस हेल्प्स यू डिटरमिन कि आपका कौन से एक्सेस को आपने रिटेन करना है और कौन से एक्सेस को रिटेन नहीं करना. तो दिस डिसीजन वाज क्वाइट इजी. आपका डाटा सेट इस तरह का है कि यू सेड ओके, सिंस द वेरिएशन और द वेरिएंस इन x1 इज मोर देन द वेरिएशन इन x2, सो वी आर गोइंग टू कीप द फर्स्ट एक्सेस एंड इग्नोर सेकंड. तो हमारा मसला हल हो जाएगा. द इंफॉर्मेशन लूज हमने की है, लेकिन दैट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी मिनिमल. ओके, और इंफॉर्मेशन हमने क्या लूज की है? इफ वी प्लॉट दैट, तो लेट मी, ये आपके पास बेसिकली, सॉरी, ये आपके पास बन रही है जो लाइन. तो जो वेरिएशन आपने लूज की है वो, फॉर एग्जांपल जो ये पॉइंट है ये इस पे फॉल कर गया, ये पॉइंट यहाँ फॉल हो गया,
ये जो पॉइंट था वो इस लाइन पे फॉल कर गया, ये लाइन इधर फॉल कर गया, ये तकरीबन लाइन पे ही है। तो ये जो आप जो फॉल कह रहा हूँ द डिस्टेंस, ये तकरीबन आपने इंफॉर्मेशन लूज की है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी ऑन वन एक्सिस। तो जो जो स्लाइट वेरिएशन है along x2 वो आपने लूज की है, राइट, एंड दैट इज वेरी लेस देन द वेरिएशन जो अगर आप x1 के को अगर आप x2 को रिटेन करते, इन दैट केस जो x1 की जो वेरिएशन थी वो सारी आप लूज कर जाते, और वो एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल इट इज फार मोर देन द वेरिएशन इन द सेकंड कंपोनेंट। तो ठीक है, ये तो आपने आंसर ठीक कर दिया, दिस इज इजी टू डू, बट व्हाट टू डू इन दिस केस, ये जो हमने ये जो पहला एग्जांपल मेंशन्ड है, व्हाट कैन वी डू हियर। इसमें तो हमारे पास वेरिएशन दोनों में तकरीबन सेम है, दोनों एक्सिस में। अब इसमें हमने 2D से 1D में जाना हो तो व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज सम अदर ऑप्शन दैट वी हैव। सर इन कैन दोनों यू को किसी तरह कम अप विद प्रोसेस सम करके रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, के रोटेशन ऐसे हो जाए कि आपके जो एक एक्सिस है वो अलोंग द हाईएस्ट वेरिएंस लाई करना शुरू कर दे। कैन यू डू दैट। फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि इस एक्सिस को रोटेट करें, तो और आपकी जो न्यू एक्सिस हैं वो ये बन जाएं, ठीक है, ये आपने रोटेट किया इस ओरिजिनल एक्सिस को, और अभी आपकी जो न्यू एक्सिस है ये रेड में ड्रॉन है, ये बन गई हैं। नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी सिमिलर टू दिस एग्जांपल, ये जो मैंने अभी रेज कर दिया है। नाउ नाउ टू डिसाइड कि कौन सा एक्सिस रिटेन करना है इज आल्सो इजियर, कि वेरिएशन जो एक्सिस 1 है, लेट मी कॉल इट 1, इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू दी वेरिएशन इन द एक्सिस 2। तो अब नाउ इफ यू वांट टू कीप इट, तो हम ये जो पहला जो एक्सिस है इसको रिटेन करेंगे सर और अगर हम दूसरे को इग्नोर कर देंगे, दूसरी तरफ तो रोटेट दैट कर विल फिर x2 रख लेंगे। इंश्योर कि जो इंफॉर्मेशन लूज किया हमने वो कम किया है। जैसे दैट अगेन, ये आवाज़ नहीं आई। सर अगर एक्सिस को दूसरी तरफ रोटेट कर दें तो x2 को हम कीप कर लेंगे, बात तो फिर वही रहेगी। अगर एक्सिस को आप कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, कि इसके बजाय आप यूं कर दें इसको, एक्सक्यूज मी तो सर, अगर हम इन दोनों वैल्यूज के एवरेज लेके एक नया कॉलम बना लें और उसको सेलेक्ट कर लें, तो ये पॉसिबल है। से दैट अगेन। सर हम इन दोनों वैल्यूज की जो हर एक डेटा पॉइंट है x1 और x2, हम उनकी एवरेज निकाल लें और एक नया कॉलम बना लें, और फिर हम उस कॉलम को एज अ फीचर सेलेक्ट कर लें, इन दोनों को ना करें। नहीं, एवरेजिंग से नहीं होगा, क्योंकि एवरेज यूजुअली वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक लूज ऑफ कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखें इवन इन दिस केस ऑल्सो मे बी इन सम केस ठीक है आपको पॉसिबल हो, बट इन जनरल टेकिंग द एवरेज इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू कि आप इंफॉर्मेशन लूज कम से कम करें। अच्छा, ये हमने कहा कि या तो आपने इस तरह रोटेट करें या क्लॉकवाइज रोटेट करें। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ कि जिसमें हम एक तो ये बन गया, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास थी ग्रीन में क्या बना दें, जिसमें आपके पास ये एक्सेस बन रहे थे, ठीक है, एक एक्सेस जो है वो दोनों का सेम है, दूसरा एक्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो दीज आर वैलिड आंसर्स के दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अभी आप फिर जो वो एक्सेस रिटेन करेंगे जिसका ज़्यादा जिसमें वेरिएंस है, और दूसरी एक्सेस को आप इग्नोर कर देंगे, विच बेसिकली मीन कि इस वाली एक्सेस को आप इग्नोर कर दें। तो दिस इज ऑल इज देयर इन PCA. PCA is a technique which allows to rotate the axis in such a way कि आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इस केस में फर्स्ट कंपोनेंट दोनों एग्जांपल्स में ये है और सेकंड कंपोनेंट इन दोनों केस में ये है, कि इस तरीके से रोटेट करें आप एक्सेस को, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इट लाइज अलोंग और इट हैज़ द मैक्सिमम वेरिएंस, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसका वेरिएंस विल बी नेक्स्ट मैक्सिमम, नेक्स्ट हाईएस्ट। आई एम टॉकिंग कि इन जनरल अगर आपके पास n डायमेंशनल केस है
तो इस लिहाज से आपने अपने एक्सिस को रोटेट करना है कि जो पहला एक्सिस है उसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड एक्सिस का है, उसके बाद थर्ड का, एंड सो ऑन। अभी जब आपके पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, अभी अगर इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने एक वेक्टर, एक एक्सिस और एक फीचर ड्रॉप करना है, तो यू आर गोइंग टू ड्रॉप द लीस्ट द फीचर विद द लीस्ट वेरिएंस। 2 करने हैं तो जो आखिरी 2 हैं वो आपने ड्रॉप कर देंगे, 3 करने हैं तो आखिरी 3 ड्रॉप कर देंगे, एंड सो ऑन, राइट? So this is all is there in PCA. Any question? So to summarize, or maybe we can take a break and we will then start again at 3.
Okay, so let's continue with the lecture. So we discussed that if we are given a data points like this, and we want to reduce the dimension from 2D to 1D, the options that we have is that we either retain the first axis or the second axis. But in a case when you have data set like this, where we saw that the variation in both the axes is almost around the same, then we cannot make that decision. And therefore, we what we discussed was that we are going to rotate the axis, and we're going to align the axis, or we're going to rotate it in such a way that the first axis aligns with the data in such a way that the variance along that component remains the highest, and the second one remains the second highest. Yeah, for example, something like this. And once we do that, then we can easily retain one component and ignore the other, and this will allow us to reduce the dimensions, at the same time keep the loss of information to the minimum. Okay, so but what helps us in deciding कि हमने rotate करना है axis को नहीं करना. We saw another example जिसमें आपके पास data set was something like that. तो उसमें हमने कहा कि we do not need to rotate, और उस केस में what we discussed was कि इसलिए क्योंकि we have variance is along this axis really high and along this axis very low, तो हमने इस केस में कहा कि okay, it's okay कि we just ignore the second axis and keep the first axis. So one thing is कि the variance along different dimensions, this helps us in deciding कि whether we need to rotate or not. But then there is one other thing as well. Let's discuss that. क्योंकि देखिए अगर आपके पास डेटा सेट इस फॉर्म में है, लेट्स ऑल्सो डिस्कस दैट एग्जांपल बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर आपके पास डेटा इज इन दिस फॉर्म, तो इस केस में यू कैन सी कि द वेरिएंस इज हायर हेयर एंड द वेरिएंस इज लोअर हेयर, बट स्टिल यू वुड लाइक टू रोटेट द एक्सिस, क्योंकि इसमें भी अगर आप रोटेट करते हैं एंड यू गेट दीज न्यू एक्सिस विच आर अलाइंड लाइक दिस, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट, and then you keep the first component and ignore the other. So this red axis is much better for reduction than the white axis. Although in white axis also आपका जो पहला component है उसमें वेरिएंस ज़्यादा है दूसरे component के मुकाबले में, but if you use the white components Cartesian coordinate system and ignore the second component, तो उसमें जो loss of information होगा that would be much higher than the loss of information if you use the red coordinate system. ठीक है, तो यू कैन नॉट ओनली मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द वेरिएंस कि अगर आपके पास एक एक्सिस में वेरिएंस ज़्यादा है दूसरे में कम है, तो देन जस्ट स्ट्रेट अवे गो विद द एक्सिस इसमें वेरिएंस ज़्यादा है. यू स्टिल वांट टू रोटेट योर एक्सिस इन सच अ वे कि आपके एक्सिस देयर अलाइंड इन अलोंग द डेटा सेट इन सच अ वे कि आपका वेरिएंस पहले एक्सिस में ज़्यादा है एंड सो ऑन. तो व्हाट वी वांट इज we want to rotate our axis in such a way कि जो आपकी the covariance है. And what is this covariance? So let's also discuss that. Variance तो हमने discuss कर दिया कि it is the spread. उसके हम equation भी देखेंगे next slide में कि it is the spread around the mean location. For example इस case में आपका ये mean है and then what is this spread? What is this variation? ये तो हो गया आपका variance. The other thing is covariance. My everything is going okay, right? मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी शेयर्ड हैं. यस सर. ओके, तो वेरिएंस हमने डिस्कस कर लिया है. व्हाट अबाउट द कोवेरिएंस? Covariance is basically the relationship between the two axes x1 and x2. So what it tells us is कि how by changing one axis what is the effect on the other. For example इसमें आप x1 को जब increase कर रहे हैं तो what is the effect on x2?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ x1 इज़ हेयर तो x2 इज़ हेयर, इस केस में x1 इज हैज़ बीन इंक्रीज तो x2 भी इंक्रीज हो गया, x3 हुआ तो x1 हुआ है तो x3 भी x2 भी हो गया, सिमिलरली x1 को इंक्रीज किया तो x2 भी इंक्रीज हुआ है। तो जनरली दिस इज द ट्रेंड कि आप x1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो x2 भी इंक्रीज हो रहा है। So this covariance actually measures that. So in this example you have a positive covariance या positive correlation between x1 and x2, right? x1 को increase करने से x2 increase कर रहा है. You can also have a negative value for that. इसमें you have a negative correlation कि x1 जो पहला component है उसको increase करने से the value of the second component is decreasing. And let's look at the third case कि जिसमें you have zero covariance. So which is this one. कि आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे मे बी यू सी अप एंड डाउन, लेकिन ओवरऑल यू इफ यू लुक एट इट तो बाय इंक्रीजिंग x1 the change in x2 is almost zero, so the covariance here is zero. So this variance and covariance you have to look at both. If the covariance is or the correlation, the covariance and correlation are related terms. If the correlation between the different components is zero, तो उस केस में यू डू नॉट नीड टू रोटेट योर एक्सेस के वो ऑलरेडी ही आपके एक्सेस दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट रिलेटेड, तो उसमें आपको उनको अनकोरिलेटेड करने की ज़रूरत नहीं है. बट हाउएवर इफ़ दे आर नॉट ज़ीरो देन यू नीड टू रोटेट इट. देखिए जैसे इस केस में द कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव, सो व्हाट वी डिड वाज टू रोटेट द एक्सेस. जब आपने रोटेट कर दिए हैं, अभी पहले कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट जो रेड है इनमें कोरिलेशन ज़ीरो है. बाय चेंजिंग दिस या इंक्रीजिंग दिस, जो effect on x2 is around zero, almost zero. So this is the objective of PCA. Okay, this is the objective. Okay, what we want, objective of PCA is to rigidly rotate the axis of this n-dimensional space. We talked about 2D, but in general अगर आपके पास n-dimensional feature points हैं तो n-dimensional space को अपने इस तरीके से rotate करना है कि to new positions, and the new position would be called principal axis और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कि जैसे इस केस में ये दो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, इसको आप कह लें PC1 विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2. तो हमने रोटेट किया टू ऑब्टेन न्यू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दैट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्डर्ड सच दैट द प्रिंसिपल एक्सिस 1 हैज़ द हाईएस्ट वेरिएंस, एक्सिस 2 हैज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस एंड सो ऑन. क्योंकि इस एग्जांपल में आपके पास थे ही दो कंपोनेंट्स और दो ही पॉसिबल हैं, 2D एग्जांपल है, तो पहले एक कंपोनेंट का हाईएस्ट वेरिएंस है, सेकंड का नेक्स्ट हाईएस्ट है, और अगर तीसरा कंपोनेंट होता तो तीसरे का थर्ड हाईएस्ट होता. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PCA टू गिव यू कंपोनेंट्स इन दिस ऑर्डर. ये आपका पहला उसकी प्रॉपर्टी है आपके कंपोनेंट्स की. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कोवेरियंस अमंग ईच पेयर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज जीरो. जब आप कोवेरियंस कंप्यूट करेंगे बिटवीन डिफरेंट एक्सेस, तो इन व्हेन वंस यू अप्लाइड PCA तो जो कोवेरियंस है इट वुड बी जीरो, विच मीन्स के डिफरेंट जो एक्सेस हैं आपके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर अनकोरिलेटेड. ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, एनी क्वेश्चन?
ओके, लेट्स डिस्कस रिडक्शन फ्रॉम 3D to 2D। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था रिडक्शन फ्रॉम 2D to 1D। अब इस केस में चूंकि हम 3D to 2D कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू मूव योर एक्सेस इन सच ए वे कि जो 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 एक्सेस आपने रिटेन करने हैं, चूंकि आपने 2 एक्सेस रिटेन करने हैं तो दैट विल डिफाइन अ प्लेन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लेन जो कि पहले स्लाइड में आपको शोन है कि ये जो आपका आपने इस तरीके से रोटेट करने हैं कि आपके 2 कंपोनेंट्स इस प्लेन के पैरेलल आ जाएं, क्योंकि द वेरिएंस अलोंग दिस इज़ द हाईएस्ट इन इस प्लेन के दोनों डायमेंशन के अक्रॉस। और जो थर्ड डायमेंशन होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन विल हैव द लीस्ट वेरिएंस। तो अभी आपने रिडक्शन करनी है, जो थर्ड कंपोनेंट है उसको रिड्यूस कर देंगे। बाकी सिंपली जब इसको आप प्लॉट करेंगे इस एक्सिस पे, तो योर पॉइंट्स वुड बी प्लॉटेड लाइक दिस, सिर्फ आप इसी प्लेन पे जब आप प्लॉट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज रिडक्शन फ्रॉम 3D to 2D एंड सिमिलर थिंग्स हैपन इन व्हेन यू गो हायर इन हायर डायमेंशनल स्पेस मोर देन 3। ओके, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल आल्सो। ये आपके पास जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स ये हैं, दिस इज x1 और ये आपका x2 है। वी कैन इजीली सी कि इसमें the two axes are correlated, so we need to find principal components जो एक तो आपस में uncorrelated हो, secondly variation या variance along first is higher than the variance along the second। तो अप्लाइंग PCA एल्गोरिदम, जो कि हम आगे जाके डिटेल में उसकी इक्वेशन देखेंगे, तो वी गेट दीज टू कंपोनेंट्स PC1 एंड PC2। PC1 हैज़ हाईएस्ट वेरिएंस, आप देख सकते हैं कि इसमें अगर वेरिएंस आप मेजर करें तो दिस इज द वेरिएंस विच इज़ हायर देन द वेरिएंस जो अलॉन्ग सेकंड कंपोनेंट है। और ये तो पहला ऑब्जेक्टिव भी हो गया। सेकेंडली जो इनकी कोरिलेशन है बिटवीन PC1 एंड PC2, इट इज़ ऑल्सो 0। And now if you plot them on these data points on the PC1 and PC2, तो this is the plot you get. Simply उसी plot को अपने rotate वापस करके ये this is what you get here. Okay. So any question? Okay, so now let's now look at the exact equations to compute the principal component analysis. So we will be given this matrix X, इसका साइज होगा m/n, m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो विजुअली अगर आप इसको विजुअलाइज करें, यू हैव n डायमेंशनल स्पेस, n जितने आपके फीचर्स हैं उतना डायमेंशनल स्पेस है। अगर 2 फीचर्स हैं तो 2 डायमेंशनल स्पेस है, और जो डाटा पॉइंट है वो इट्स अ डॉट, इट्स अ पॉइंट इन दैट स्पेस। 2D केस में तो बड़ा आसानी से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2D डाटा पॉइंट्स, ईच डॉट रिप्रेजेंट्स वन ट्रेनिंग एग्जांपल। कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? m डाटा पॉइंट्स हैं। इन जनरल यू हैव n डायमेंशनल स्पेस, मे बी वो n मे बी 10, 20, 30 डिपेंडिंग आपका जो फीचर्स कितने हैं। तो वी विल नॉट बी एबल टू visually see it, but you can visualize that okay, this is a 30 dimensional space जिसमें each training example is a point। अगर आपने उस ट्रेनिंग एग्जांपल का along any of the axis, any of the coordinate, अगर सेंट्रॉइड फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने x1 के अगेंस्ट सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो इन सब डाटा पॉइंट के जो x1 के जो कंपोनेंट है उसका आप एवरेज लेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द सेंट्रॉइड along x1। सिमिलरली x2 के सारे कंपोनेंट्स का आप एवरेज कंप्यूट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट ए सेंट्रॉइड along x2। और दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द मीन ऑफ ईच वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
10 डायमेंशनल स्पेस है तो यू विल गेट 10 सेंट्रॉइड, राइट, क्योंकि आपने हर एक एक्सिस का मीन कंप्यूट करना है. That is going to give you the mean value, the mean location along that axis. So if we talk about 2D case here, तो आपके पास दो सेंट्रॉइड आ गए, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके से ड्रॉन है कि सेंट्रॉइड बेसिकली लाइज हेयर. अगर आप दिस इज द फर्स्ट एक्सिस, अगर आप इसको लेट्स से वी कॉल दिस x2 and this is x1. okay, so along the first axis this is the mean, along second axis this is the mean. Now if we want to compute the variance along these two dimensions, तो उसकी equation is given here कि हर data point से आपने mean subtract करना है along that axis, take the sum and you're going to get the variance. So simply basically what we do here is, sorry आगे चले गए, we subtract the mean, we subtract from each data point the mean for each feature and then take the sum, divide by the total number of data points. That's going to give you the variance along that dimension. So इससे आपके पास variance आ जाएगा. Okay. Covariance क्या है कि degree to which the variables are linearly correlated, it is represented by their covariances. जो हमने बात की कि how is one axis related to the other axis. और इसकी equation क्या है? It's very simple. This is the equation for that. Okay, and compare it with the variance. Variance में देखिए आपके पास आप स्क्वायर ले रहे हैं. इस केस में आप क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्क्वायर, ये पहला एक्सिस का पहला जो एक्सिस है उसका वैल्यू आ गई और सेकंड एक्सिस की वैल्यू आ गई. इन केस ऑफ वेरिएंस बोथ दीज टू वैल्यूज आर सेम, तो इसलिए बेसिकली व्हाट यू डूइंग इज टेकिंग द स्क्वायर. लेकिन इन केस ऑफ कोवेरिएंस आप जो है इस तरीके से कंप्यूट करते हैं कोवेरिएंस. Okay. Okay, before we move forward, any question? And just to recap, we looking at PCA, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि we want to rotate our axis. Not only rotate, but we also have to actually in the final, ये तो हमने सिर्फ rotate किया, but we also have to translate और उसको फिर mean location पे रखना है. तो final location would be then basically something like this. ठीक है, उसको आपने rotate करके translate भी करना है. और ये आपका PC1 होगा, ये PC2 होगा. तो दिस इज योर मेन लोकेशन, जो उस जगह पे आपने, दैट विल बी योर ओरिजिन. यहाँ तो हमने सिर्फ रोटेट शुरू में हमने किया था, बट यू आल्सो हैव टू ट्रांसलेट टू द मेन लोकेशन. तो अभी जो नेक्स्ट हम चीज़ देख रहे हैं कि हाउ टू एक्चुअली डू दैट यूजिंग इक्वेशंस, और एक्चुअल एल्गोरिथम क्या होगा विच इज गोइंग टू हेल्प अस डू दैट. तो उसके लिए व्हाट वी आर स्टार्टेड ऑफ लुकिंग के मीन कैसे कंप्यूट करते हैं. मीन इज़ जो आपने दो डिपेंडिंग कि कितना आपके कौन से आप कितनी डायमेंशनल स्पेस है. टू डायमेंशनल स्पेस में यू वुड हैव अ मीन आल्सो ऑफ मीन वेक्टर ऑफ आल्सो टू वैल्यूज along the two components. तो ये आपका पहला एक्सेस आ गया इधर, पहला मीन वैल्यू, दूसरी मीन बेसिकली मीन्स के दिस इज योर लोकेशन फॉर द मीन. तो और सेंट्रॉइड जब आपने कंप्यूट कर लिया, देन यू आल्सो नीड टू कंप्यूट द वेरिएंस. वेरिएंस है आपका कि फॉर ई डाटा पॉइंट, लेट्स से आपका ये डाटा पॉइंट है, उसका हम वेरिएंस कंप्यूट कर रहे हैं अलोंग द डायमेंशन x1. तो दिस वैल्यू इज, this value you are going to subtract by the mean, which is this mean location here,
and you do it for all the data points, and then you take the sum and it's going to give you कि कितना variation है. Similarly for the other case. Covariance का formula ये है कि आपने for each data point you subtract the उसके जो पहला एक्सेस है उसको यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका मीन, मल्टीप्लाई बाय जो सेकंड का जो एक्सेस है उसको उसका मीन सेपरेट करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. यू डू दैट फॉर ऑल द वैल्यूज, टेक द सम and divide by the number of data points which is written here. This is going to give you the covariance, how uh, two axes, two coordinate axes, they are related to each other. Covariance is a matrix, and let's say we say C11. So what is C11 equal to? या इसको यूं कर लेंगे, since I said कि covariance is a matrix, so you're going to get a matrix. अगर 2D problem है तो this is what you're going to get: C11, C12, C21 and C22. C11 is basically the variance along the first axis. C22 is the variance along second axis. C12 and C21 are the covariance of the first and second, and they are equal, which means that covariance is always a symmetric matrix. Okay, so what is C11 equal to? I mean, what does it measures? सबको समझ आ रहा है? Should we continue? क्या करना चाहिए? पर C11 वेरिएंस ही नहीं बनेगी जी सर, C11 वेरिएंस ही नहीं बनेगी क्योंकि सेम उसमें आ जाएगा. ठीक है, वो C11 वेरिएंस बनेगी along first axis, C22 वेरिएंस बनेगा along the second axis. तो this covariance matrix is basically a complete matrix जिसमें आपके पास complete information of variances आ गई है. एक तो वेरिएंस along each component जो कि डायगोनल में होगा, जैसे C11 और C22 है. Of diagonal terms is going to give you the covariance of one axis with the other. अगर आपके पास let's say 3-dimensional problem है तो उसमें the covariance matrix size would be 3x3. Diagonal terms में जो 3 elements होंगे वो होंगे variance along each one of the 3 axes, और off diagonal terms will measure the covariance of the first with second, first with third, second with third and so on. और आपका C is always, this covariance matrix is always symmetric, which means के C21 and C12 they are equal. Similarly in 3D case also आपके पास जो off diagonal 3 terms आएंगी दोनों साइड पे, they are equal to each other. So this is an example कि ये आपके पास given है आपको data set. तो the first thing is कि we need to compute the mean along both axes. तो x1 is 8.3, ये इस जगह पे आपका मीन आ गया, which is 8.3 जो पहला मीन है along the first axis. x2 is around 4.91 which is here.
right? So this is the mean. So these two are now this 8.35 and 4.98 जो कि plus sign जो है, this is the centroid, the mean value for this problem. Next we need to compute the variance. Okay, so variance covariance matrix तो आपको दे देगा basically complete, जिसमें आपके पास यहाँ होगा V1 या C11 कह लें उसको, सेकेंडली V2 जिसको हम C22 कह रहे हैं, एंड देन यू हैव ऑफ डायगोनल टर्म्स जो कि मेजर करेंगे आपके covariance. So if for this example V1 which is the variance along the first axis, it comes out to be 6.67. The variance along the second axis comes out to be 6.24. And C12 which is this term here या C21 दोनों क्योंकि values एक ही आएंगी, this is C3.42 which is telling me कि they are highly correlated. C1 and C2 are correlated. अगर C12 0 होता है then it would mean कि they are uncorrelated, and then you do not actually need to do PCA क्योंकि already ही आपके पास जो axes हैं they are uncorrelated. और ये इन्हीं formulas की मदद से मैंने compute किए हैं all these variances and covariances. Okay, so the way we apply the PCA algorithm, the first step is to subtract the mean from all data points. And once you do that, so data points आपके पास, let's say this is the plot of all these mean subtracted data points. And then you rotate the components or the axes in such a way कि आपका जो पहला component है, it has the highest variance, the second component has the second highest variance. अभी हम अगर variance compute करें along these two axes PC1 and PC2, तो this is what we observe कि PC1 के against जो variance है 9.88 है, PC2 की जो variance है it is 3.01, and PC1 and PC2 है 0 covariance. ठीक है, और ये variance again हमने इसी formula के तहत compute किया है. जब आप इसको यूज़ करते हैं यूज़ दी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपका कोवेरिएंस ये वाले आते हैं. ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स आएगा. जब आप यूज़ करते हैं अप्लाई करते हैं PCA एंड कंप्यूट द कोवेरिएंस यूजिंग द अपडेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन यू गेट द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस एज दिस कि आपके पास जो C मैट्रिक्स बनेगा इट वुड बी 9.88 3.03 एंड देन यू विल हैव 0 and 0 क्योंकि दे आर अनकोरिलेटेड. ओके, ये दिस इज द प्लॉट ऑफ दैट डाटा कि जब आपने इसको प्लॉट किया along PC1 and PC2, and you can also see from the figure itself के they are uncorrelated. Okay, I guess के यहाँ से आगे हम we are going to continue from tomorrow. आज के इतना काफ़ी है. आपने GMM भी अपने पहले पढ़ा है and then इसको भी देखा है, तो मैं भी I guess के इसको यहाँ ही ख़त्म कर देना चाहिए, तो ताकि आप इसको दोबारा हम कल रिवाइज करके दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली it will make more sense and you are going to understand it better. So any question?